Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjay Joshi. You know, everyone on YouTube is just talking about how to pass the CF exam. But आज हम थोड़ा सा reverse engineering करते हैं. Let's see how to fail it. Yes, because honestly, failure भी एक art है. And trust me, if you follow this 5 golden rules, you will fail in style. आप तो जानते हैं कि फेल होने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मैं भी मेहनत कर करके थक चुका हूँ पॉप्स। थोड़ा And there's a bonus tip at the end, so make sure you watch till the end. वरना बेमतलब में पास हो गए तो मुझे कंप्लेन करोगे कि हमारी सैलरी बढ़ गई, हमें ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, हमें ज़्यादा नॉलेज हो गई. तो stick to the goal. So if failing the CFA is your dream, take notes. This is your roadmap. Rule number 1: watch videos, don't solve questions. क्यों लेना स्ट्रेस क्वेश्चंस करने का when you can just watch YouTube and call it studying, right? Just keep watching lectures like they're Netflix. Volume low, eyes half open, and brain fully off. I mean, who needs active learning when you can just feel productive? But here's the truth: CFA doesn't test what you have watched, it tests what you have practiced. If you can't recall, apply, and solve, you'll just end up knowing everything except how to answer those actual questions. Rule number 2: start studying 2 weeks before the exam. Consistency. आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। Consistency is overrated, right? Start late. The later, the better. Because everyone knows brain works best under stress, right? Wrong. Sleep, who needs that when you can just have 12 cups of coffee and a mountain of regret? बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझते that CFA isn't about long hours. It's about the long months. Starting early can give you an edge because 2 hours a day for 5 months is always better than 10 hours a day for 2 weeks. Rule 3: skip ethics. It's common sense, right? हम सबका favorite subject जब skip करने की बारी है. Because everyone thinks that they're ethical, right? You'll never manipulate a trade, insider information, or a report. पक्का ना? Except ethics कॉमन सेंस के बारे में है ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट द CFA सेंस, द वर्डिंग, द इंटेंट, द ट्रिकी सिचुएशन. वो सब बनाई इसलिए गई है कि आप उन क्वेश्चंस में ट्रैप हो और आप कोई गलती करो. स्किपिंग एथिक्स मतलब हमारा पासिंग स्कोर स्किप करना. बिकॉज गेस वॉट, एथिक्स कैन रियली डिसाइड वेदर यू विल पास और फेल इन द एग्जामिनेशन. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द CFA इंस्टीट्यूट पॉलिसी. रूल नंबर 4: स्किप द मॉक्स. वैसे वो बहुत बड़े और बोरिंग होते हैं. 3 घंटे मेहनत करो बिना किसी रीजन के, जस्ट skip them. After all, you can test yourself on the exam day, right? But in reality, mocks are the only way to examine how exam day actually feels like. The pressure, the timing, the fatigue. आप mocks इसलिए नहीं करते हो कि you can just feel smart. Mocks इसलिए करे जाते हैं that you can feel uncomfortable और अपनी गलतियां पता चल सके कि कहाँ हम वीक है किन एरियाज में और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. Skipping mocks मतलब actual exams will be your first practice test and probably your last. ईशान, कैसा था टेस्ट? Rule number 5: study without a plan. क्या प्लान बनाना, कोई स्ट्रैटेजी बनानी बे मतलब बिंदास रहो. जस्ट ओपन रैंडम टॉपिक्स एवरी डे. किसी ने डेरिवेटिव्स पढ़ लो, मन किया तो क्वांट पढ़ लो, फिर किसी ने इक्विटी पढ़ लिया, राइट? बिकॉज ये जो इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट और जीनियस लोग होते हैं ना, ये लोग प्लान वैन नहीं रखते हैं, क्योंकि असली CFA वॉरियर्स तो chaos में बिलीव रखते हैं, राइट? इफ यू स्टडी विदाउट स्ट्रक्चर, यू विल स्पेंड मोर टाइम फिगरिंग कि पढ़ना क्या है रादर देन एक्चुअली स्टडिंग. क्योंकि सच ही है, नो प्लान इज इक्वल टू नो प्रोग्रेस. CFA सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी. इफ यू डोंट ब्रेक योर प्लान इनटू वीकली गोल्स, आप बस पढ़ते ही रह जाओगे और एंड डे आ गया होगा और आपको कुछ नहीं पता होगा कि क्या पढ़ा है, क्या आता है, क्या नहीं आता है. सो मेक श्योर यू डोंट हैव अ प्लान. नाउ द बोनस टिप, एज आई प्रॉमिस्ड, वो गलती जो अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन को भी खराब कर सकती है, एंड दैट इज नॉट रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स. लोग बस मॉक्स दे देते हैं और उसमें जब गलतियां होती तो बोलते कि वो तो सिली मिस्टेक थी. बट भाई, एग्ज़ाम वाले दिन पे वो गलतियां सिली मिस्टेक्स थी नहीं थी, कहाँ मार्क्स मिले नहीं मिले, ये नहीं पता चलेगा. इट्स जस्ट पास और फेल. जो लोग एग्ज़ाम में पास होते हैं, दे डोंट जस्ट स्टडी, दे एनालाइज, they note down their weak areas, they revise and they retest.
और फिर उन लोगों को एग्ज़ाम में सक्सेस मिलती है. बट हमें मेक श्योर करना है कि हम ये सब ना करें क्योंकि हमें फेल होना है. ओके, so yeah, if your goal is to get failed, now you have the roadmap. But if you actually want to pass, do the opposite. Be consistent, practice questions daily, take mocks, and most importantly, don't just study to pass the CF exam, but study to understand finance. Now go fail productively or surprise yourself and pass.